Ladies and gentlemen, good morning and welcome to the Q2 FY26 earnings conference call hosted by PhysicsWallah Limited. As a reminder, all participant lines will remain in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal the operator by pressing star, then zero on your touch-tone telephone. Please note that this conference is being recorded. I will now hand the conference over to Ms. Garima Mishra from Kotak Securities for opening remarks. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you, Ryan. Good morning, everyone. It is indeed a great pleasure to host PhysicsWallah's maiden earnings call after its stellar listing. Joining us today to discuss earnings for the second quarter and half year ended 30th September 2025 are Mr. Alakh Pandey, CEO and whole-time director, Mr. Prateek Boob, whole-time director, and Mr. Amit Sachdeva, CFO. The results and shareholders' letter have been uploaded to the stock exchanges and are available on the company's investor relations website. Before we begin, I'd like to remind you that certain statements made on this call may be forward-looking in nature and should be viewed in conjunction with the risk factors disclosed in the company's filings. With that, I'll now hand the call over to Mr. Alakh Pandey. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, whichever part of the world you are joining from. First of all, thank you everyone, thank you so much for being a partner at PW now and literally changing the educational landscape of Bharat. Thank you everyone, or should I say congratulations as well. For now, as you are one of the disruptors in education in India, part of that mission. At PW, we have always believed and we will still believe that education should not be a luxury. It is a necessity, it is a right of every kid. And we are here to provide that basic right to each of the students of Bharat. We are here to reach to Tier 3, Tier 4, the remotest village of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and all other states of the India. IPO was a good milestone for me, for Prateek, for the entire team. Yeah, it was a good success, but along with that, a lot of responsibility. We feel a lot of responsibility from all the shareholders who supported us, who were with us, who trusted us, even with a lot of marks on the education sector in the terms of financial world. But PW has proven that wrong and will continue proving that history wrong. We feel we are still scratching the surface. We have just started. The whole Bharat is waiting for us. We have the right pedagogy, right content, as well as the right technology. There are enough amount of students waiting for all of us to be taught, to be brought to the mainstream Bharat. Over to you, Prateek and Amitji. Thank you, Alakh sir, for opening the remark. So, welcome you all, Prateek Boob this side. We have finished we have published our second quarter results, and overall company is looking quite strong in terms of enrollment growth, in terms of overall revenue growth, path to profitability, a good jump in our PAT numbers from last year quarter 2 to this year quarter 2. Overall, H1 looks quite strong to us. In general, quarter 3 is the strongest quarter for the company, and quarter 3 will also be PAT profitable. We have a very unique business model, which is very affordable courses for Bharat, in which thousands of students study together in a live classroom environment, and we continue to teach the remotest part of the country with the help of internet and mobile penetration. If you see our offline growth numbers in terms of enrollments, in terms of
in terms of overall penetration is also increasing at a very rapid rate. I'm happy to answer any of your questions in terms of numbers. And before we jump to that, I would like to invite Amit, and if he wants to add on anything here. Thank you so much, Prateek sir. Just a quick summary of our quarterly Q2 FY26 performance. We did, upload all the materials on our, website yesterday, and the necessary, done on the stock exchanges. So overall revenue from operations increased 26% year-over-year to 1,051 crores. Our adjusted EBITDA grew 38% to 269 crores, with margin expansion from 23% to 26%. Our pre-Ind AS EBITDA, we've also started reporting, IGAAP or pre-Ind AS EBITDA as part of our reconciliation now. So that in Q2 came at 160 crores, almost a jump of 37% year-over-year improvement. Our Q2 PAT came at roughly 70 crores, up 70% year-over-year. Like Prateek sir mentioned, I think our enrollments are looking strong, both in online and offline. Our online ARPU continues to grow significantly. We saw an 8% increase in our online ARPU, and we feel that our academic cycle, depending on how the enrollments come in, we expect the full year number to be in the same region. In terms of Q3 performance, Q3 is going to be our strongest quarter, depending on how the academic cycles is. And as part of, one of the questions that we've also answered, if, you got a chance to look at the Q&A, in terms of the cyclical nature of our business, so Q1 comes strong in terms of our enrollments. Q2 and Q3, where most of our batches run both from an online and offline perspective, come strongly in terms of our revenue recognition based on the batches that keep on happening. And Q4, as the batches run down, enrollments come back, and one of the highest quarters in terms of collections as we launch Vishwas Diwas, which is our largest event in terms of student enrollment. So that's a quick summary of our overall financial performance. We can now open up, the forum for any Q&A that might, the team might have. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use their handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We take the first question from the line of Vivek M. from Jefferies. Please go ahead. Hi, good morning, team. My questions are going to be, and apologies if these are naive questions, but slightly, basic. So first is, from a, let's say, now that you're a listed company, how do you think about, balancing growth and profitability? Because, the reason how you started, and the ending piece is that education is the ornament of all. How do you balance the pressure of publicly listed company, which is, which also focuses on profitability, as compared to growth, that in an unlisted setup that is easy. How do you do it now that you're listed and there are going to be quarterly pressures, so to speak? See, thank you, Vivek, for asking this question. Of course, to run a listed company, you have to see top line growth and bottom line growth. This is essential for any company. We as a company is on a mission to teach Bharat. That doesn't mean that we need not to give profitability. If you see our results of quarter 2, the entire H1, we have a 29% revenue growth. Bottom line also improved significantly. So ये तो हम historically perform कर ही रहे हैं, both top line improvement and bottom line improvement.
अगर आप देखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑलरेडी हमने प्राइसेस को बहुत डिसरप्ट कर दिया है. मतलब पूरी IIT और नीट की तैयारी जो साल भर की लाइव लर्निंग है वो 4,000 रुपीज में आज भी हो रही है. हमने हमारे ARPUs, ACPUs जो ऑनलाइन के हैं वो सिर्फ 8% से बढ़ाए हैं, फिर भी हमने मोर देन 30% की ग्रोथ जो है डिलीवर कर दी है. ये सब कहाँ से हो रहा है? बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे क्वालिटी टीचर का एक्सेस नहीं है. मतलब क्योंकि 25 करोड़ बच्चे हैं जिसमें से हम लेस देन 2% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं. तो विद द स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, विद द इंटरनेट पेनिट्रेशन, with we expanding to state boards as exam categories, KTEN as exam categories, and adding newer exam categories, so enrollment growth अभी बहुत आना बाकी है यहाँ से. As well as हम तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे बैठे हैं, तो ARPU इम्प्रूवमेंट या ACP इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी बहुत है. फॉर एग्जाम्पल जो पूरे दिन की पढ़ाई है वो 10 रुपए पर डे, मतलब लेस देन चाय के पैसों के अंदर हम करा रहे हैं. मतलब बच्चों को भी इंटरनेट महंगा पड़ रहा है हमारे कोर्सेज से. तो ARPU इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है, बट नॉट एट अ डाइल्यूशन ऑफ द विजन ऑफ द कंपनी विच इज मेक एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर एंटायर कंट्री. Got it. Very interesting. Sir, matlab, I don't want a formal guidance from you, but let's say over the next 3-5 years, how do you think your growth trajectory should be? Year to year there may be blips along the way, but 3-5 years में आपको कैसे लगता है? How should the growth numbers be for you? So we wanted to grow sustainably, और आपको ग्रोथ के अंदर रेवेन्यू इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा. दोनों नंबर्स आपको अगले 3 से 5 साल में ऊपर जाते हुए दिखेंगे, बिकॉज टैम इज ह्यूज और वी वांट टू ग्रो सस्टेनेबली. वी हैव अ वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल जिसके अंदर हम कम्युनिटीज बनाते हैं, इंटरनेट पे फ्री पढ़ाते हैं. अगर किसी बच्चे के पास में 4,000 रुपए नहीं भी है तो भी वो जाकर के फ्री पढ़ाई करे यूट्यूब से, और वहां से भी उसके सिलेक्शन की गारंटी उतनी ही है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केटिंग कॉस्ट में लेवरेज आएगा, परसेंटेज पेरोल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर लेवरेज आएगा, एज वेल एज एनरोलमेंट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी भी स्ट्रॉन्गली देखने को मिलेगी आपको. तो वो टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबल एंड बॉटम लाइन के अंदर आपको नेक्स्ट 3 to 5 years के अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. Got it. A couple of more questions, if I may. On the let's say expansion into other, both actually south as well as other than JEE, NEET. Do you think you're spreading? As an outsider, I think थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि you're spreading yourself a bit too thin. Do you think that is the case, and how do you manage when you have like so many things? So like almost half of your total enrollment was around, let's say, JEE, NEET. Now that has come down to about 35%. How do you manage, as you are, adding more categories? Oh, right. So I'm just referring to the question number 14 of our shareholder letter. I'm glad that you have brought this thing up. So JEE and NEET are the early exam categories जो हमने 2020 के अंदर स्टार्ट की थी. वहाँ पे भी आप देखेंगे तो ओवरऑल revenue improvement is in double digits and continue to be strong growth lever for upcoming years. But dependency on JEE NEET has reduced drastically over the years because the playbook which we have created कि communities बनाओ, YouTube पे free पढ़ाओ, वहाँ से बच्चा आपके ऐप पे आएगा, आपके पेड कोर्सेज लेगा, आपकी मार्केटिंग के स्पेंड्स को कम रखो. तो ये फ्रीमियम मॉडल जो है वो प्लेबुक JEE NEET के अलावा बाकी एग्जाम कैटेगरीज के अंदर भी अपना मैजिक दिखाने लगा. तो अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट, JEE NEET 36% था 2024 में, जो 31% हो गया 2025 में. आगे आने वाले टाइम के अंदर भी ये परसेंटेज जो है वो आप अगर H1 का नंबर देखेंगे 2025 से 2026 का कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इज कमिंग फ्रॉम JEE NEET एग्जाम कैटेगरीज, तो दैट इज ऑन ऑल्सो डिक्लाइन. तो इसका मतलब नए एग्जाम कैटेगरीज काफी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ JEE NEET ग्रोथ रेट
हिंदी हार्टलैंड के अंदर हमने अच्छा मार्केट शेयर अभी ले रखा है. There is a central India and there is a southern India जहाँ पर हम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. तो ओवरऑल there is a scope to do multifold growth in JEE itself and other exam categories के अंदर तो हमने हमारे बिजनेस को पूरा डाइवर्सिफाई कर लिया है. Got it. And last question is, do you think there is a sense, whether it's about, new region or, let's say, getting, let's say, bigger success and share in the new categories, M&A, do you think, because I'm guessing there will be a lot of regional jewels who are doing, great in their catchment area, but are highly regionalized. Do you think there is a sense in acquiring those? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हम अभी इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी है जो लिस्टेड है और हमारे पास में मार्केट कंसोलिडेशन की सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट एंड वी आर अ लिस्टेड कंपनी. तो एक्सेस टू द कैपिटल बिकम्स ईजियर व्हेन यू आर लिस्टेड एंड वी आर सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ कैश एज वेल. एट द सेम टाइम एनी एमएनए को कंपनी किस लेंस से देखती है कि या तो वो हमको कोई ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन दे कि किसी अगर ज्योग्राफी के अंदर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर अगर हम नहीं प्रेजेंट हैं तो हम वहाँ पे एमएनए करें या फिर हमको वो कैटेगरियल एक्सपेंशन दे कि कोई ऐसी एग्जाम कैटेगरी जिसके अंदर हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है. तो ये दो थीसिस हमने बनाई है. वी हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पास्ट ऑल्सो और दिस ईयर ऑल्सो वी हैव डन वन एमएनए विद द सारथी आईएएस व्हिच इज इन द यूपीएससी डोमेन. जिन टारगेट ऑडियंस को वो पढ़ाते थे that was slightly different from PW target audience और 40% stake हमने सारथी आईएएस के अंदर लिया. We will have 85% stake till FY28 और सारथी की भी ग्रोथ लास्ट ईयर दिस ईयर की काफी स्ट्रॉन्ग मोर देन 30% आपको देखने को मिलेगी. तो we have the opportunity but at the same time one has to be very conscious to do these deals because two companies putting together, two different cultures putting together, M&A, के अंदर it is very important कि cultural alignment हो, strategic alignment हो. So it is a thing which one has to do with the utmost responsibility. But we are sitting on a lot of opportunity at this point of time. Got it. Thank you for patiently answering all my questions and wishing you all the very best. Thank you. Thank you. We take the next question from the line of Shubham Dalia from Incred Equities. Please go ahead. Hi, good morning, and thank you for the opportunity and congratulations on the great results. I have two questions. The first one is on the top line growth. Again, if you cannot give a formal guidance, that is fine. But for this quarter, the top line grew at around 26%. The last quarter we did YY around 33%. So in FY25 we were at around 48%. So how, because the nature of the business is that you have a visibility of the entire year. So how are you looking at the second half of the year in terms of the top line? That is my first question. So overall, in terms of macro, the quarter 3 is the strongest quarter for the cyclicity nature of the company. Quarter 3 जो है कंपनी का highest top line and highest EBITDA margin quarter होता है. And quarter 3 के अंदर upwards of 20% EBITDA, which we have done in quarter 2, a number of 15% EBITDA if you see the quarter 2 EBITDA numbers. And in terms of revenue growth also, अगर आप देखेंगे तो H1 के अंदर अगर हम H1 की ग्रोथ लास्ट ईयर H1 से कंपेयर करें तो 29% ग्रोथ H1 की हमारी रही है लास्ट ईयर टू दिस ईयर. और उसके अंदर 49% contribution from online operations आ रहा है, 47% का contribution from offline channels आ रहा है, and 4% from other channels आ रहा है, which is we have covered in our shareholder letter as well. And H2 के अंदर जो revenue होगा वो H1 से ज़्यादा ही होगा. That is what I can give you guidance. Okay, thank you, Pratik.
जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी ऑफलाइन एक्सपेंशन के ऊपर, अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देंगे. अभी लार्जली ओवरऑल जो स्प्लिट है वो काइंड ऑफ बैलेंस्ड है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में. डाउन द लाइन जैसे कि आप ऑफलाइन एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी आपके 300 के ऊपर सेंटर्स हैं, तो हाउ डू यू सी दैट स्प्लिट गोइंग ऑन डाउन द लाइन, लेट्स से 2 year 3 year डाउन द लाइन, की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का जो, बिकॉज वहाँ पे आरपू ज्यादा है ऑफलाइन में, तो वो स्प्लिट, रेवेन्यू स्प्लिट आप कैसे देखते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में, कि वो बैलेंस्ड रहेगा या विल गेट टिल्टेड टुवर्ड्स ऑफलाइन, या कैसे होगा? तो अदर वे राउंड होगा, इट विल टिल्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर हिस्टोरिकल नंबर्स को अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार ऑफलाइन हमने बहुत तेजी से एक्सपैंड किए. ऑफलाइन एक्सपेंशन से फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा एडा लॉस भी आता है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर गेट प्रॉफिटेबल इन सेकेंड ईयर एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल थर्ड ईयर के अंदर आता है. तो हमने पिछले 2 साल में FY 24-25 में 170 सेंटर्स खोले. तो ऑफलाइन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन था लॉसेस का वो पीक टाइम तो चला गया है. आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर हम 75 सेंटर्स खोल रहे हैं, जिसके अंदर 45 विद्यापीठ सेंटर्स हैं, 10 पाठशाला सेंटर्स हैं और 20 अदर सेंटर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स और हमारे कुछ सब्सिडीज के सेंटर्स हैं. तो ये आर्ट ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ ओपनिंग अ सेंटर एंड फर्स्ट ईयर के अंदर उसको मिनिमाइज लॉसेस से चलाना, ये प्लेबुक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हुई है. मूविंग फॉरवर्ड हम सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफलाइन के अंदर करते रहेंगे. रेवेन्यू मिक्स नियर इक्वल है, ऑनलाइन का 49% है, ऑफलाइन का 47% है. ये थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ टिल्ट होगा, क्योंकि अब जो हमने हमारे यूज ऑफ प्रोसीड्स के अंदर भी मेंशन किया था कि अगले 3 साल में हम 200 नए सेंटर्स खोलने वाले हैं. तो ऑन एन एवरेज हम 70 सेंटर्स पर ईयर की रन रेट से सेंटर्स खोलेंगे. तो अगले साल हम 75 नए सेंटर्स खोलने वाले हैं. ऑफकोर्स वहाँ पे आरपू जाता है और वो एक कंपाउंडिंग स्टोरी है जो अगले 10 साल तक चलती चली जाएगी, जिसके अंदर हम सेंटर्स खोलते चले जाएंगे और वहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज से बहुत सारा लेवरेज अभी आना बाकी है. तो वी आर जस्ट 3.5 year old कंपनी इन टर्म्स ऑफ offline learning. All right. Yes. Thank you. Yes, that answers my question. And thank you so much, Prateek and Alak, and all the best to the team for the next quarters and years. Thank you. Thank you. We take the next question from the line of Gaurav Malhotra from Axis Capital. Please go ahead. Yeah, hi. Thank you for the opportunity and congrats on a good set of numbers. Just 2-3 questions. First of all, your center, the center growth has been pretty healthy. So if you can just give us some sense of, how are the centers, say, in the last 9-12 months, how are they sort of tracking in terms of utilization, margins, etc.? हाँ, सो सेंटर ग्रोथ जो है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सेंटर का यूनिट इकोनॉमिक्स या बॉक्स यूनिट इकोनॉमिक्स बताऊं, तो लेकिन टिपिकल एक सेंटर का बॉक्स होता है, उसके अंदर 1000 सीटिंग कैपेसिटी होती है. वो 2 शिफ्ट में या समटाइम्स 3 शिफ्ट में ऑपरेट करता है. 2 to 2.5 CR का जो है इन्वेस्टमेंट से एक सेंटर स्टार्ट होता है. दैट इज द टिपिक्स इन्वेस्टमेंट. इसमें लीड सेंटर्स होते हैं हमारे. और पहले साल के अंदर हम कुछ 1500 स्टूडेंट्स का एडमिशन लेते हैं और -6% जो है इब्रा एक टिपिकल ऑफलाइन लर्निंग विद्यापीठ जेईई का सेंटर हमको कंट्रीब्यूट करता है. अगले साल जब हमारा एडमिशन सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में जब 2000 हो जाते हैं, तब वही सेंटर हमको 6% का इब्रा देने लग जाता है. और थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन में एनीवेयर बिटवीन 13 to 15% इब्रा मार्जिन निकलने लग जाते हैं. थर्ड ईयर के अंदर 2500 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है. सेंटर जो है 2 शिफ्ट में ऑपरेट करता है. तो सीट यूटिलाइजेशन इज वन मेट्रिक विच वी क्लोजली फॉलो, कि किस तरह से हम सीट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है. उसके साथ साथ लेकिन कुछ एंगेजमेंट मेट्रिक्स की, टीचर की रेटिंग कैसे चल रही है, बच्चों का एनपीएस कैसे चल रहा है, लर्निंग आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, हम उस सिटी के अंदर कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस सिटी के अंदर हमारा रिजल्ट का मार्केट शेयर किस तरह से बढ़ा रहे हैं. ये सारी की मेट्रिक्स किसी ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स को चलाने के लिए होती है. जो कि बॉक्स यूनिट इकोनॉमिक्स आर वेरी टाइटली इन प्लेस एंड बिजनेस फाइनेंस कंटिन्यूसली मॉनिटर्स कि हमारे रेंटल परसेंटेज जो हमारा
फॉर एनी न्यू सेंटर साइनिंग जो रेंटल है वो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से नीचे रहे, उस कैचमेंट के अंदर एक डेफिनेट ऑनलाइन लर्नर्स हो, क्योंकि हमारा ऑफलाइन इज लिंक टू ऑनलाइन, 80% ऑफ आवर ऑफलाइन एडमिशन हैपेंस थ्रू ऑनलाइन। तो ये सारे प्रोसेसेस हमको एक बड़ी यूनिक ऑफलाइन कंपनी बनाते हैं। हमने जो ऑफलाइन के अंदर 3.5 साल में किया, हमारे कंपटीशन को 40 साल लग गए वो करने में, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनल कंपनीज। हमने फिजिकल लर्निंग सेंटर्स बनाए, टेक इनेबल ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स बनाए, सो दैट्स व्हाई वी कुड rapidly scale our offline, and now here onwards we will sustainably grow our offline learning centers chain. Understood. Just one more question, if you can just help us understand how do we think about the ARPU growth in the offline segment, right? First quarter, what was given in the RHP, we had certain number, and now we have for 2Q. The growth seems to be a little bit. How do we think about this sort of for the full year and going ahead? It's a question. Right, it's a very good question. I was expecting someone should see this change in pattern. So basically, ARPU जो हमारा है ना, Q1 और Q2 के अंदर measure करना, sometimes that doesn't give you the true picture. क्योंकि क्या होता है कि आरपू, जैसे अगर आप देख रहे हैं हमारा अभी आरपू जो है वो समवेयर अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज के आसपास आ रहा है, और वो आपको स्लाइटली डिक्लाइन दिख रहा होगा लास्ट ईयर से, दैट इज 4% डिक्लाइन फ्रॉम लास्ट ईयर आरपू। तो इसके 2 रीजन है। एक तो हमने हमारे ऑफलाइन के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जो कि 3 months 6 months नेचर के थे। तो ऑफकोर्स जो 3-6 months नेचर के जो कोर्सेज होते हैं वो कम प्राइस के होते हैं। एट द सेम टाइम विद्यापीठ के आरपू का पूरी क्लैरिटी ईयर लॉन्ग पिक्चर से मालूम चलती है। बट अगर आप हमारे ऑफलाइन के प्ले को देखें तो हमारे एनरोलमेंट 30% से ज्यादा है, हमारा रेवेन्यू 22% से अप है इन जस्ट आर ऑफलाइन प्ले, और जो ये आरपू का स्लाइट डिक्लाइन हुआ है 4% पे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की वजह से हुआ है। और ये हमारे नेचर ऑफ बिजनेस बिकॉज फर्स्ट हाफ के अंदर वो ट्रू पिक्चर और ट्रू कलर निकल के नहीं आता है, वो पूरे एनुअल ईयर के अंदर निकल के आता है आरपू का। सो टू होल्ड ऑन आरपू एज अ मेट्रिक on first quarter or second quarter or third quarter is not the right way we look at business. We look at the annual ARPU picture, और annual ARPU picture के अंदर विद्यापीठ ARPU will be improved. Addition to your point, अगले साल से 1 April 2026 से हम हमारे ऑनलाइन बिजनेस, हमारे ऑफलाइन बिजनेस के EBITDA के प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल अलग अलग करके दिखाएंगे, so that market will have a even more deeper and fair understanding how the business is shaping up. I think we can take to the next question. Sorry. Thank you. We take the next question from the line of Swapnil Podduke from JMFL. Please go ahead. Hi, thanks for the opportunity, and congratulations on a successful listing and a good set of numbers in 2Q. My first question is more of a clarification actually, because you mentioned 6% EBITDA margin for the offline business in second year and 13% in the third year. Just wanted to understand, are these pre-Ind AS margins, or these are the reported margins we are talking about? These are the margins जो मैंने बताया सर, ये बॉक्स यूनिट इकोनॉमिक्स के मार्जिन हैं। ये IGAP pre-Ind AS EBITDA मार्जिन हैं, जो हमारा एक टिपिकल बॉक्स जो डिजाइन होता है वो फर्स्ट ईयर में -6%, सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर में -5%, सेकेंड ईयर में +6% और थर्ड ईयर में +13% IGAP EBITDA देता है। So this will include the rental cost and everything. That typically should be everything, rental, everything, central cost, everything. Only ESOP adjustment we do in our IGAP EBITDA. Perfect. The second thing I wanted to understand, obviously, this is the difference between your offline and online margins today.
I understand you have not disclosed it for certain reasons, but still, if I were to just go ahead and ask you, what would be the gap between the two business margins at a pre-Ind AS level, and also how many offline centers today are profitable again at a pre-Ind AS level out of those 314 centers that you have? Yes. So, just to clarify you, sir, कि हमने हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन की मार्जिन लेवल्स को सेपरेटली क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब हमको नंबर रिपोर्ट करने होते हैं तो इस ईयर के हर क्वार्टर को लास्ट ईयर के हर क्वार्टर से कंपेयर करना होता है. लास्ट ईयर उस तरह की अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे नहीं थी कि कॉस्ट वॉज कम्प्लीटली बाइफरकेटेड बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. बट इस साल हम कम्प्लीटली ट्रैक कर रहे हैं और 1 अप्रैल से हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बिजनेस को बिल्कुल सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे. इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन ऑफ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ बोथ द बिजनेसेस, एट अ स्टेडी स्टेट ऑफलाइन बिजनेस टेंड्स टुवर्ड्स 13% EBITDA लेवल, और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हमारी जो अर्ली एग्जाम कैटेगरीज हैं वो 45% EBITDA आई गैप EBITDA भी दे रही है. तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को कंपेयर करना आपस में इट्स लाइक एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है, बिकॉज ऑफलाइन is a compounding story, it's a high ARPU story, it is like, you can grow it for a longer tenure. Online, it's a very profitable story, it's a cash engine for us, it's our internal cash cow. उसी से हम सारा हमारा future expansion कर रहे हैं. As well as future के अंदर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन को इंटीग्रेट भी कर रहे हैं. ऑनलाइन मर्ज विद ऑफलाइन करके एक बहुत इंटेलिजेंट एक्सपेरिमेंट हम अभी कंपनी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं. तो टू गिव यू स्टेडी स्टेट मार्जिन्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इज समवेयर बिटवीन 35 to 45% EBITDA, and steady state margins for our offline business is 13 to 15% EBITDA. That's very helpful. Just double clicking on the number of offline centers which you think would be profitable today. I mean, just to, I know it's a small time, but still. So 72 out of 111 centers of our Vidyapeeth, which is JEE NEET offline, are profitable. And our offline is, not just JEE NEET. जिस एग्जाम कैटेगरी के अंदर हम ऑनलाइन के अंदर मार्केट शेयर में डोमिनेंस ले लेते हैं, उसका हम ऑफलाइन लर्निंग सेंटर स्टार्ट कर लेते हैं. आवर JEE NEET बिजनेस contributes 65% of the total offline revenue, और उसके अंदर से almost 40% centers हमारे अभी profitable हो गए. That's very helpful. The second question is regarding your offline center location strategy. I mean, since you are in the offline business for roughly around 3.5 years, my question here is like, how do you identify centers? Right? How do you locate them? Do you just follow the competition and possibly put up a center there, or like there is some different strategy when you identify the location for a center? And typically, between two centers, what would be the typical distance? Or I mean, any thoughts on those lines also? Yeah. So क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप हमारे शेयर होल्डर लेटर में पढ़ेंगे तो आपको ये काफी डिटेल आंसर मिल जाएगा. बट जस्ट टू एम्फसाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत ही डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी होती है कि कहाँ पे सेंटर खोलना है. हमारा जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन से लिंक्ड है. 80% ऑफलाइन के एडमिशन ऑनलाइन से ही होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर तो हम ऑलमोस्ट 15 टाइम्स मोर स्टूडेंट्स पढ़ा रहे होते हैं. और अगर किसी पिन कोड के अंदर हमारे पास में एक सफिशिएंट ऑनलाइन लर्नर बेस होता है तो उस पिन कोड के अंदर जाकर के हम हमारा ऑफलाइन लर्निंग सेंटर खोल देते हैं. और उस सारे पिन कोड्स के ऑनलाइन लर्नर्स को नोटिफिकेशन भेज देते हैं, छोटा सा इवेंट कर देते हैं, जिससे सारे बच्चों को सेंटर्स के बारे में अवेयरनेस हो जाती है और बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं. तो आर ऑफलाइन इज एक्चुअली लिंक्ड, इट्स अ फिजिकल, इट्स अ लिंक टू ऑनलाइन. तो इसी स्ट्रैटेजी से हम नए सेंटर्स खोलते चले जाते हैं, और ये उस एरिया के डेमोग्राफिक्स, कंपटीशन, आर इंटरनल डेटा, इन सब को कंबाइन करके हमने एक इंटरनल मॉडल क्रिएट किया है, और उस मॉडल से हम जो है हमारे ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स खोलते चले जाते हैं. Got it. And one question on the average time spent by students on your platform.
I'm asking this because unlike a few other tech businesses where customers tend to have a longer, they tend to stay longer with the platform, students would typically be on your platform or in your centers for a limited period of time. So typically, what till now, what is the average number of years, months that students stay? And the related question to that is like, how do you address the question with respect to constantly need to acquire new students every year? Obviously, right? So those things. Yeah. Right. Very, very good question, sir. Like, see, first I'll address the direct question which you have asked. तो बेसिकली बच्चे की जर्नी किस तरह से होती है? टिपिकली ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th के अंदर अभी करंटली जो स्टूडेंट है अपनी लाइफ का पहला डिजिटल कोर्स खरीद रहा है, तो क्लास 10th का बोर्ड हमारे साथ देता है, फिर वो जब क्लास 11th में आता है तो वो साइंस का अगर स्टूडेंट है या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है या वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका कोर्स फर्दर हमारे पास में लेता है. फिर वो क्लास 12th में आता है, फिर अगेन या तो बोर्ड या कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करता है. जब वो कॉलेज आता है तो वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीए, फाउंडेशन, सीए, इंटर या फिर कैट या गेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है. तो लेकिन तो दैट मेक्स मी अ फुल स्टैक कंपनी. अभी हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डिजिटल परचेज जो है, जो 9, 10th, 11th, 12th में होता है, वो यंगर एजेस के अंदर जा रहा है. वो ग्रेड 6, 7th, 8th के अंदर हम अब फर्स्ट डिजिटल परचेज को होता हुआ देख रहे हैं. तो एलटीवी हमारी कंपनी का वैसे बहुत हाई है. अगर आप इसको क्विक कॉमर्स या फिर अदर ई कॉमर्स कंपनी से कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि यार वो ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है. बट देयर आर 2 मैट्रिसेस व्हिच मेक्स अस very unique as a company. One is monthly active users to daily active user. I stand strongest as compared to any consumer internet company कि कितना monthly active user is divided by my daily active user. Second metric is average time spent by a user. मेरे प्लेटफॉर्म पे बच्चा a paid user spends almost 100 to 120 minutes on a daily basis. That makes me a very unique company. मेरे पास में बच्चों के इतने ज्यादा डेटा पॉइंट जनरेट होते हैं कि बच्चे का EQ क्या है, IQ क्या है, इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, उसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है. तो that makes me fundamentally I am a teacher. I am a digital teacher. मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ पता होता है. तो जो ये डेटा है that is also very precious for us. और average time spent to do an e-commerce transaction or a quick commerce transaction is very less, and the number of data point उस पूरी जर्नी में जनरेट होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं. तो अगर आप देखेंगे बच्चा भले ही कोर्स 1 साल के लिए ले रहा है पर वो डेली 2 घंटे मुझे दे रहा है और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स उस पूरी जर्नी के अंदर जनरेट हो रहे हैं. और माई माउस टू डाउ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज. Got it. Just last one, if I can just squeeze in. This is with respect to, what I have seen, correct me if I'm wrong, typically state board exams, commerce exams or defense exams, they will have their own teachers who will have their own brand within a certain community of students. Now, as we expand beyond NEET and medical, or JEE, how do you address this question? Like because typically the edtech businesses are built around the brand of the certain personality. Right, sir. तो सर हमने इसी के अराउंड एक डेटा ड्रिवन प्लेबुक क्रिएट की है जिसके अंदर जो है हर टीचर क्लास के बाद में बच्चा उस टीचर को रेट करता है. और ये एवरेज टीचर रेटिंग और स्टूडेंट एंगेजमेंट और अटेंडेंस हम कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं. आपने सही कहा कि यार लेकिन ये बहुत ही, अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो महाराष्ट्र अलग है, यूपी अलग है, बिहार अलग है, कॉमर्स वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है. तो हमारे पास में भी एकदम रीजनल टीचर्स हम हायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी करानी है तो हम महाराष्ट्र जाकर के वहाँ पे हायरिंग करेंगे और कंटिन्यूसली डेटा से हम ट्रैक करेंगे कि टीचर की रेटिंग कैसे चल रही है, एंगेजमेंट कैसा चल रहा है, बच्चों के आउटकम्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. But at the same time, you have to, understand कि अब हर एक बच्चे के पास में मोबाइल फोन आ गया है और वो जो लोकल टीचर है
those local teachers are still charging 15, 20, 25,000 rupees. चाहे मैं स्टेट बोर्ड की भी बात करूँ, लेकिन मिनिमम 25-30,000 रुपए तो वो साल भर का चार्ज ही कर रहे हैं. Where my ARPUs of online is not even 10% of the local teacher. जो टीचर हमारे पास में है, क्योंकि वो बहुत ही हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, माई स्टूडेंट टीचर रेशियो फॉर माई ऑनलाइन बिजनेस इज 1:10,000. मतलब 500 टीचर्स मिलकर के 50 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं. तो दैट मेक्स मी लेकिन कि मैं अपने टीचर्स को बहुत हाई सैलरीज भी दे सकता हूँ, हाई ग्रोथ प्रोजेक्टरीज भी दे सकता हूँ. तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टैलेंट आई विल बी एबल टू अट्रैक्ट, लेकिन बिकॉज आई एम द लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल. तो आपको अगर लेकिन अपने लोकल टीचर से 10 टाइम्स बेहतर टीचर 10% प्राइस में मिल रहा है, और वो भी आपके लेकिन मोबाइल फोन के अंदर, तो दैट मेक्स अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन टू लेकिन टू हैव इट विद यू. बहुत सारे बच्चे उसको प्राइमरी लर्निंग की तरह यूज करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ऑफलाइन नहीं जा सकते, जो कन्वीनियंस चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन इनफ है. कुछ बच्चे उसको सेकेंडरी लर्निंग की तरह भी यूज करते हैं कि वो अपने किसी ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स में जा रहे होंगे, फिर भी वो हमारा कोर्स ले लेते हैं. वहीं पे मैजिक होता है जब बच्चा अपने किसी और दूसरे ब्रांड के या फिर लोकल ब्रांड के साथ में ऑफलाइन लर्निंग सेंटर पे जा रहा होता है और वो हमारा कोर्स ले लेता है और उसको लगता है कि यार ये तो 1/10 प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और इनके पढ़ाने से मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तब दैट ट्रांसलेट इनटू ग्रेट वर्ड ऑफ माउथ. तो इस तरह से लगे. और अच्छा एजुकेशन बिजनेस वही बिजनेस है जिसके अंदर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हो. आप बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, वो उनको जाके बताएंगे, आप अपने आप ग्रो होते चले जाओगे. Did I answer? Got it. Yes. So just a slight question regarding that. Like, what will be the average tenure of a teacher staying with you? I mean, is the retention very, very high, given that you said like you rate them and you gauge them, and so that helps you better align it with your interest? So, sir, to answer this question, we have actually taken in our shareholder letter, question number 16. You can go through that. तो बेसिकली रिटेंशन नंबर्स को हमने इस बार बाइफरकेट करके दिखाया कि हमारे लेक्चर फैकल्टीज का क्या रिटेंशन है और हमारे ओवरऑल फैकल्टीज का क्या रिटेंशन है. तो फैकल्टीज के अंदर लेक्चर फैकल्टीज होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका रिटेंशन नंबर 15 to 17% के ऊपर है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. सॉरी, एट्रीशन कह रहा हूँ, एट्रीशन 15 to 17% है हमारे लेक्चर फैकल्टीज का. बट सिंस वी आर ऑनलाइन कंपनी, हमारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स, डाउट सॉल्वर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग का भी बहुत बड़ा वर्कफोर्स होता है. वी आर सपोर्ट टीचर्स. तो जनरली सपोर्ट टीचर्स के अंदर आइट्रेशन होता है बिकॉज ये बहुत ही एंट्री लेवल और लेकिन फर्स्ट जॉब होती है बहुत सारे टैलेंट के लिए. पर 15 to 17% का आइट्रेशन इन अ लेक्चर फैकल्टी इज समवॉट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. ऑनलाइन के अंदर ये नंबर फर्दर कम है. अब इसके दो प्राइमरी रीजन होते हैं टीचर आइट्रेशन के. एक कि टीचर का परफॉर्मेंस की एवरेज रेटिंग नहीं आ रही है और वो हमारे लिए नॉर्थ स्टार मैट्रिक है, उसके साथ में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं बिकॉज स्टूडेंट की लाइफ का वो ईयर बहुत ही प्रीशियस है. तो अगर वो टीचर रेटिंग्स इंप्रूव नहीं होती है तो वी हैव टू लेट गो आवर टीचर्स. और उसके अंदर लेकिन वी हैव डेडिकेटेड SOPs की पहले टीचर के साथ में काम करो, उसको इम्प्रूव करवाओ, 3 to 6 months का चांस दो. बट अगर वो नंबर नहीं होता, वो इम्प्रूव दिखता है तो फिर हमको कॉल लेना पड़ता है. सेकंड, अभी AI की वजह से भी कंटेंट एक्सपर्ट, डाउट सॉल्वर्स के अंदर काफी एफिशिएंसी किक इन हो रही है. इस वजह से वहां पर भी थोड़ा सा ये नंबर इस साल हल्का सा मतलब लेकिन 15% से 25% लास्ट ईयर के H1 से इस साल के H1 में 27%, 2% बढ़ता हुआ दिख रहा है. बट मैक्रो के अंदर नथिंग इज चेंजिंग. इट इज ड्राइविंग हायर स्टूडेंट एंगेजमेंट ओनली and it is driving higher bottom line as well. Got it. Thanks a lot for your taking the time out and answering my questions. All the best for you. Thank you. We take the next question from the line of Abhishek Banerjee from ICICI Securities. Please go ahead. Hey, hi. Thanks for the opportunity. Just a couple of questions from my side. First, would you have any sense of the average annual incomes of the parents of the students who enroll with you, especially in offline?
So we are a Bharat story. We are a complete Bharat story. अगर आप हमारे ऑनलाइन के ऑडियंस को देखेंगे तो हमारे इंटरनल सर्वेस कहते हैं कि 67% स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे से पढ़ रहे हैं और उनके मतलब दिस इज द मार्केट वी हैव क्रिएटेड. लेकिन ये मार्केट पूरा अनऑर्गेनाइज था. ये बच्चे सिर्फ एग्जाम्स के फॉर्म भर रहे थे और इनके पास में गुड क्वालिटी टीचिंग का एक्सेस नहीं था. तो वी आर क्रिएटर ऑफ दिस मार्केट और इसके अंदर तो हम मार्केट एक्सपेंशन थ्योरी कर रहे हैं. ऑफलाइन के अंदर लेकिन जो हमारे विद्यापीठ के जो आरपूज होते हैं और जो ओवरऑल आरपूज होते हैं वो क्लोज अपवर्ड्स ऑफ 40,000 रुपीज पर एनम होते हैं एंटायर ऑफलाइन पुट टुगेदर. हमने एग्जैक्ट इकोनॉमिक प्रोफाइल नहीं करी है बट करेंटली वी आर वर्किंग ऑन अ पॉपुलेशन स्केल और जनरली जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफलाइन के पेरेंट्स का होता है वो थोड़ा बेहतर होता है ऑनलाइन से. एट द सेम टाइम लेकिन अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के अंदर लेकिन पर हाउस होल्ड जो स्पेंड ऑन एजुकेशन है वो 4 से 5 हजार रुपए है और विद आर जीडीपी ग्रोथ ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज एजुकेशन इज अ नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड. every new rupee to the family every new rupee coming to the family, the first right goes into the kids education. So that makes us a very very unique company. मतलब मिडिल क्लास इंडिया ग्रॉसेस ज्यादा एजुकेशन के ऊपर, लोअर मिडिल क्लास इंडिया ग्रॉसेस ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करना चाहता है. Understood. So, just from a TAM perspective, right? What would you think is the current, is your current penetration in offline, and where can it go to? हाँ, so हमने हमारे शेयरहोल्डर लेटर के अंदर ना टैम का क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत डिटेल और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. तो हमारी अर्ली एग्जाम कैटेगरीज जो हमने 2020 में स्टार्ट करी थी, जिनको हम 5 साल से चला रहे हैं, वहां पर हमने 20% मार्केट शेयर ले लिया है. ये मार्केट शेयर जो है हिंदी हार्टलैंड में काफी स्ट्रांग है. हिंदी हार्टलैंड में 30 to 40% पे है, पर मिड सेंट्रल और सदर्न इंडिया के अंदर ये लेस देन 10 एंड लेस देन 5% रेस्पेक्टिवली है. So there is a headroom to expand our JEE categories by 100% in upcoming years. But at the same time, जो हमारी early exam categories है, civil services, government exam, CBSE boards, ICSE, GATE, state boards exam categories, यहाँ पर तो हमारा market share मतलब less than 1% है अभी at this point of time पे. Overall अगर हम TAM देखते हैं तो हमारा market share सिर्फ 2% है, less than 2% है. So we are just barely scratching the surface. और ऑफलाइन पेनिट्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो हम इन दिस इंडस्ट्री हम नंबर 5th प्लेयर हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमारे से ऊपर 4 और प्लेयर हैं, बट आई एम फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफलाइन ब्रांड इन द कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऑफलाइन के अंदर तो मैं नंबर 5th पे हूँ. जो टॉप 4 प्लेयर हैं, पुट टुगेदर वो 2 बिलियन का रेवेन्यू करते होंगे अप्रोक्सीमेटली. मेरा मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 7-8% ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट मैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ. और थोड़ा सा वो मार्केट फ्रेगमेंटेड भी है, वहाँ पे कंसोलिडेशन की भी अपॉर्चुनिटी है. बट एट द सेम टाइम लाइक एज आई टोल्ड बिफोर, बाय वर्सेस बिल्ड, वी प्रेफर टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. Or my offline is very unique, which is linked to online. 80% of the admissions happens from my online learner base only. No, understood. But my question also wanted to understand what are your thoughts on getting into the jobs exams categories, say things like GAIL exam or SAIL exam or railways exams, etc. So do you see that as a category where you would like to expand into the future, and if so, what is the additional TAM that you can get from that? So government state exams we have already ventured and we are seeing a good traction. उसके ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं. और फॉर एग्जांपल अगर रेलवे की ओपनिंग निकलती है तो ग्रुप बी के अंदर 90 लाख बच्चे तक अप्लाई करते हैं. यूपी कांस्टेबल की जब ओपनिंग निकलती है तो उसमें 20 से 30 लाख बच्चे तक अप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने वेंचर कर लिया है
और यहाँ पर हमको अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज अभी दिखाई दे रहे हैं, बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. ओवरऑल रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग एट अ गुड वेरी हेल्दी रेट. तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी तो हम कराने लग गए हैं, चाहे वो यूपीएससी जैसा एग्जाम हो जिसमें आपकी आईएएस की जॉब लगती है वर्सेस आपका एक कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी जैसा एग्जाम हो. तो ये तो हम ऑलरेडी हमने वेंचर कर लिया है. स्किलिंग कोर्सेज, प्राइवेट जॉब्स अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस और 0 to 1 की जर्नी के अंदर है. वहां पर हम वो 0 to 1 और हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. बट गेल एग्जाम, सेल एग्जाम सिंस यू मेंशन, वो गेट के एग्जाम की तैयारी के थ्रू हम कवर कर रहे हैं. तो लेकिन वहां पर हमने फुट इन द डोर रख दिया है, प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया है और अब वो लेकिन ग्रोथ स्टेज के अंदर जाएगा. Understood. And how do you I would request you to please join back the queue for follow-up questions. Yeah, sure. Thanks. Thank you. We take the next question from the line of Dhvanit Shah from PL Capital. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, Dhvanit, please go ahead. Hi, sir. Congratulations on a good set of numbers. सर मुझे ये पूछना था कि अपनी एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस आई थिंक क्लोज टू अराउंड 40% से बढ़ी है. तो व्हाट वुड बी द रीजन? एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सर. विश्वास दिवस पे कितना स्पेंड करते हैं, मतलब ओवरऑल एक बॉल पार्क फिगर जैसा? तो विश्वास दिवस इज अ इवेंट, वहाँ पे कुछ मार्केटिंग स्पेंड नहीं होता, बस वो इस इवेंट को कंडक्ट करने का जो बहुत बेहद मिनिमम एक्सपेंस होता है. तो बेसिकली इस साल हमने मार्केटिंग का जो साइकिल है उसको चेंज किया है. तो पहले हम यूनिफॉर्मली हर क्वार्टर के अंदर स्पेंड करते थे और उसका हमको रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नहीं मिल रहा था. तो हमने कहा जो हमारे ग्रोथ मंथ्स हैं, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम एनरोलमेंट होते हैं, हम वहां पर हमारे स्पेंड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखें. तो Q1 और Q2 के अंदर जो आप ये नंबर देख रहे होंगे, दैट इज कमिंग अराउंड, लेकिन पूरे H1 के अंदर जो नंबर जो है अराउंड 10% के आसपास आ रहा है. बट ईयर एंड तक जब आप ये नंबर देखेंगे, हमारा ओवरऑल मार्केटिंग स्पेंड वो 8 से 9% इस साल रहने वाला है, जो कि लास्ट ईयर 9.6% था. तो पूरे साल के अंदर जो है ये गुडनेस आप हमको दे देगा. यही एक रीजन था कि इसकी वजह से थोड़ा सा रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ H1 इज लिटिल लेस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि हमने ये साइकिल शिफ्ट किया है मार्केटिंग स्पेंड का और H1 के अंदर हमने रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड किया है. Q1 के अंदर ये नंबर 14% था, Q2 के अंदर नंबर ये 8% आ गया. ओवरऑल H1 के अंदर ये अराउंड 10% है. पूरे ईयर के अंदर ये नंबर जो है 8 to 9% रहने वाला है. और वी आर अ वेरी ऑर्गेनिक कंपनी. हमने हिस्टोरिकली कभी भी डबल डिजिट परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग स्पेंड नहीं किया है और आगे आने वाले सालों के अंदर भी हम ये नहीं करने वाले हैं. तो हम कम्युनिटीज बनाने में बिलीव करते हैं, फ्री पढ़ाने में बिलीव करते हैं और वहीं से बच्चा जो है हमारे पास में मोबाइल ऐप पे आता है और हमारे पेड कोर्सेज खरीदता है. तो वी आर अ वर्ड ऑफ माउथ कंपनी. ओके. बट यूजुअली ये एडमिशन के पहले ही हम लोग मार्केटिंग स्पेंड करते रहेंगे ना, या रिजल्ट्स के आने के बाद? ये 2 टाइम पे ही होता रहेगा ना सर? हाँ, तो एडमिशन और रिजल्ट ना दोनों सेम टाइम पे ही हो रहे होते हैं. तो जो हमारा Q1 और जो Q2 होता है वहीं पे मार्केटिंग स्पेंड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा. Q3 और Q4 के अंदर क्योंकि एडमिशन हो गया है, क्लासेस चल रही है, मार्केटिंग स्पेंड का ज्यादा रिटर्न आता नहीं है. तो ये जो है ये हमें थोड़ा लेट समझ में आया. तो हमने इस साल से मार्केटिंग स्पेंड के साइकिल को थोड़ा सा ट्वीट किया है और ये Q1 और Q2 में ही रहने वाला है. ओके सर. और अट्रीशन रेट जो 25% से 27% जंप हुआ है, तो दैट 2% आप सिर्फ बोल रहे हो वो सपोर्ट स्टाफ के रिगार्डिंग ये है या कोई नया एजुकेशन, मतलब इफ एनी न्यू एजुकेशन कैटेगरी में वी आर सीइंग एनी हिकअप सॉर्ट ऑफ अ थिंग? नहीं सर, लेकिन हमने अभी तक किसी भी कैटेगरी को शट डाउन नहीं किया है. और क्यों एजुकेशन से कंपाउंडिंग स्टोरी 2-3 साल के अंदर अगर कोई कैटेगरी नहीं परफॉर्म भी कर रही होती है, परफॉर्म करने लग जाती है. बिकॉज प्लेबुक अगर वो प्लेबुक JEE में चली है तो बाकी जगह भी चलेगी और हमने प्रूव भी किया है चीज. तो जो ये 25 to 27% है, इसके अंदर AI इज वन ऑफ द रीजन.
थोड़ा सा डाउट फैकल्टी, सपोर्ट स्टाफ, उन सब के अराउंड जो है हमें AI की वजह से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, अब उनकी उतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो जो नेचुरल एट्रिशन हो रहा था उसको हमने बैकफिल नहीं किया। एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो लेक्चर फैकल्टी का जो एट्रिशन है वो 15 से 17% के बीच में है हमारा, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कंपैरिजन के अंदर ठीक नंबर है। और वहां पे जो एट्रिशन हुआ है 15 से 17% जो लेक्चर फैकल्टी का हुआ है वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और उनकी रेटिंग्स की वजह से हुआ है। Okay, sir. Okay. Wish you all the best, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Akshan Thakkar from Fidelity Worldwide Investment. Please go ahead. हाय सर, पहले क्वार्टर के लिए बताइए मेरे तरफ से। एक क्वेश्चन था सर, ऑफलाइन सेंटर में आपके फिजिकल सेंटर्स काफ़ी ग्रो है, ऑलमोस्ट 70% ग्रोथ है, लेकिन उनका गुडनेस रेवेन्यू में ट्रांसलेट नहीं हुआ है अभी तक। सो अगर मैं H1 का भी रेवेन्यू देखूँ, ये क्वार्टर का ना देखूँ, तो सिर्फ हम 25% के आजू बाजू ग्रो किया है। तो ऑफलाइन बिजनेस में फुल ईयर में अगर आप ये समझा सके कि हम ग्रोथ कैसे समझे, क्योंकि सेंटर ग्रोथ और रेवेन्यू फ्रॉम ऑफलाइन सेंटर में कुछ कनेक्शन होगा, तो वो आगे जाके आएगा या अगले बरस आएगा? थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच। अलग हियर। पहली बात तो ये कि दिस इज नॉट द राइट वे टू लुक एट, क्योंकि अभी H1 के अंदर ना अपना कलेक्शन आता है, रेवेन्यू हम लोग का अक्रू होता रहता है, तो वो गुडनेस आपको H2 के अंदर पूरे ईयर में दिखती है। वो H1 के अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि फीस हम पहले ले लेते हैं साल के स्टार्टिंग में, फिर उसको अक्रू करते रहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको जो दिख रहा होगा आरपू मिक्स थोड़ा चेंज दिख रहा होगा ऑफलाइन के अंदर, जबकि इनरोलमेंट के अंदर आप देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली मेरे ख्याल से 30% इनरोलमेंट के अंदर आपको दिख रहा होगा। वो आरपू मिक्स इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि एक तो वी आर नॉट ओनली डूइंग JEE नीट, वी आर डूइंग अदर एग्जाम्स एज वेल। हम धीमे धीमे एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ JEE नीट करते थे, तो इनिशियली 100% JEE नीट ऑफलाइन था। अभी आप ऑफलाइन के अंदर भी देखेंगे तो 66% हमारा JEE नीट बचा है। अब हम अदर एग्जाम्स करते हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, UPSC एग्जाम्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स के अंदर ना शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, लाइक बैंक एग्जाम्स हो गया, SSC एग्जाम्स हो गया, नर्सिंग एग्जाम्स हो गया। तो वहाँ 3-3 महीने, 4-4 महीने के कोर्स होते हैं। इस वजह से वहाँ पे आरपू क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, फीस कम होती है। तो कमिंग टू योर पॉइंट कि किस तरह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, कैसे दिखेगी, तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मेरी जो अर्ली कैटेगरी है, विच इज IIT नीट की कैटेगरी जो हमारी है, जिसका हम ऑफलाइन करते हैं, उसको हम विद्यापीठ बोलते हैं, तो वो अभी कैटेगरी मार्जिन लेवल पे इस साल ही प्रॉफिटेबल हमारी हो चुकी है। और रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज आर टू यंग, अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है। तो आप टिपिकली समझ लो, जैसे हमारी JEE नीट की जो ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं वो 18 मंथ्स लेते हैं टू बिकम प्रॉफिटेबल, एंड इट टेक्स नियरली 24 to 36 मंथ्स, 24 to 30 मंथ्स आप ले लो, रिटर्न ऑफ कैपिटल का लेते हैं। अदर कैटेगरीज ऑल्सो टेक लाइक 12 मंथ्स टू गेट प्रॉफिटेबल। अभी हम लोग देखें तो हमारे ऑफलाइन के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैटेगरी मार्जिन लेवल पे आ गई है। वो EBITDA और पैट लेवल पे आई थिंक FY27 विल बी EBITDA लेवल प्रॉफिटेबल इन आवर कंप्लीट ऑफलाइन, एंड 28 विल गो टू पैट और समथिंग। 27 हमें वो ये दिख रहा है कि हमारा ऑफलाइन भी EBITDA लेवल पे प्रॉफिटेबल होगा। ओके, एंड टॉप लाइन पे सर प्रॉफिटेबिलिटी में समझ गया कि एडवांसेस आगे जैसे आ जाएगा, बट जैसे टॉप लाइन 25% है आपके बेस में, आई वुड हैव थॉट कि ऑफलाइन ग्रो थोड़ा ज्यादा करेगा। तो ये जो पिकअप इन ग्रोथ है वो सेकंड हाफ में होगा आपके हिसाब से, यही 25-30% पे ग्रो करेगा ऑफलाइन बिजनेस? नहीं, 25-30 पे ही करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव बीन अज्यूमिंग सिंस लास्ट 1 ईयर, और ये इट्स समथिंग दैट इज स्ट्रेटेजिक एंड दैट वी नो। हमारी ऑनलाइन जो है उसकी ग्रोथ जो होगी वो आउटपास करेगी, सरपास करेगी ऑफलाइन को, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, द ब्रांड वाज वेरी स्ट्रांग इन द लास्ट 3 इयर्स। तो हमने अपने जितने भी हिंदी हार्टलैंड थे स्ट्रांग, जहाँ हमारी ब्रांड प्रेजेंस थी, वहाँ पे हमने सेंटर्स स्टार्टिंग के 3 इयर्स में हमने ओपन कर दिए थे, एंड दैट वाज अ कॉन्शियस कॉल। वी डिडंट वांट एनी कॉम्पिटिटर टू टेक आवर प्लेस, तो हमने वाले सेंटर्स ऑलरेडी ओपन कर दिए थे, जहाँ पे आप देखोगे तो ऑफलाइन की ग्रोथ आपको 50%, 40% टाइप दिख रही होगी। अभी यहाँ की जो ऑफलाइन की ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी, एंड दैट विल बी 25-30% ही होगी। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। थैंक यू अक्षन, थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Lokesh from SK Investment. Please go ahead. So, sir, good morning.
So sir, I looked at the numbers and जो other income वाला part है उसमें थोड़ा sudden spike नजर आया है इस H1 के numbers में, तो if you could elaborate on that. So which particular other income we are talking about? अच्छा वो that is the other income you are asking. हमारा जो revenue split है पूरा. Okay. तो सर क्या है ना कि हम जैसे से हमारी ब्रांड स्ट्रांग होती गई, we started tying up with schools and institutions for their academic books. तो हमारे के इन हाउस वर्टिकल है कंटेंट के अराउंड, जहाँ पे हम PW Academy करके चलाते हैं उसको, और स्कूलों के अंदर हम बुक्स सप्लाई करते हैं. तो क्लोज टू आई थिंक 3000 स्कूल्स के अंदर हम लोग बुक्स बच्चों को देते हैं. तो वहाँ पे ये जाता है. रेवेन्यू स्प्लिट आप देखेंगे तो आई थिंक क्लोज टू 49% इज राइट नाउ ऑनलाइन और 47% हमारा ऑफलाइन होगा. 4% इज अदर. हमें थोड़ा सा जो स्पाइक दिख रहा है ये किताबों की वजह से दिख रहा है जो स्कूल में जा रहे हैं. ओके. एंड सर ऑफलाइन को लेकर मेरा क्वेश्चन था, ऑफलाइन पे जो ग्रोथ रही है आपकी वो काफी कंसिस्टेंट रही है, बट वहाँ पर जो आपके प्राइसेस हैं वो बाकी प्लेयर्स से काफी कम है. तो हाउ डू यू सी कि वो कैसे प्रॉफिटेबल बनेगा वाइल, क्योंकि बाकी जो कॉस्ट होते हैं फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लीजिंग एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग अ सेंटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर एवरीबॉडी. सो हाउ डू यू थिंक यू वुड मेक इट प्रॉफिटेबल? हाँ नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट. एक्चुअली क्या है कि इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपने कॉस्ट के हिसाब से अपने बॉक्स को डिजाइन करना होता है. तो वी आर राइटली प्लेस्ड इन ऑफलाइन एज वेल. तो जो बहुत ही प्रीमियम प्लेयर हैं वो हमसे 40% अप चार्ज करते हैं. दैट गिव अस द लेवर कि हम उस प्राइस पॉइंट तक भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पहुंच सकते हैं. बाकी इसके बाद जो 2 रिमेनिंग सेकंड थर्ड प्लेयर्स हैं उनमें हम भी आते हैं जो इस प्राइस के आसपास है. हम बहुत ही लो प्राइस भी नहीं है. IIT नीट के अंदर जो हमारा आरपू निकल के आता है वो क्लोज टू 60,000 62,000 के आसपास हमारा आरपू निकल के आता है IIT नीट का, विच इज नॉट वेरी लो. तो आगे वेरी टॉप प्लेयर्स को अगर आप छोड़ दो 1 और 2 प्लेयर, तो उसके बाद हमारा आरपू भी इज अ गुड आरपू. ऐसा नहीं कि हम बहुत सस्ते हैं. वी नेवर से दैट वी आर अफोर्डेबल इन ऑफलाइन. हम अफोर्डेबिलिटी स्टोरी लेके ऑफलाइन में नहीं जाते हैं. ऑफलाइन में हम जो जाते हैं एक्सपीरियंस स्टोरी को लेके, रिजल्ट स्टोरी को लेके जाते हैं. एंड एट दिस आरपू ऑफ IIT नीट 60,000 हमारी पिक्चर फेयर बन जाती है. उसका हम स्प्लिट देख लेते हैं कि 35% जो हो रहा है रेवेन्यू का वो टीचर कॉस्ट होना चाहिए. टीचर कॉस्ट शुड बी लेस देन 35%. जो रेंटल है वो 12 से 14% कम होना चाहिए. स्टूडेंट टीचर रेशियो जो हमारा है वो बाकी ब्रांड से बहुत अच्छा होता है. स्टूडेंट टीचर रेशियो ये होता है कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है. तो हमारा पहले ईयर के अंदर ही स्टूडेंट टीचर रेशियो गोज टू लाइक 68 69 और फिर अगले ईयर वो 75 पे जाता है, फिर 82 पे जाता है, फिर 90 पे जाएगा. तो स्टूडेंट टीचर रेशियो इज वर्किंग जिसके अराउंड हम प्ले कर पाते हैं. इसके अलावा जो शिफ्ट होती है दैट इज अ सीट मल्टीप्लायर. वी प्ले अराउंड दैट सीट मल्टीप्लायर. जितने भी अभी तक के ऑफलाइन प्लेयर होते थे, नो वन इज हैज डिजाइन द बॉक्स मॉडल सो परफेक्टली लाइक PW, क्योंकि किसी के पास भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं था, इतनी अच्छी पैनल पिक्चर्स नहीं होती थी, डिस्फाइनाइज नहीं होता था. तो हमारे अंदर जो शिफ्ट होती है, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन यूटिलाइज अ सिंगल सीट, उसको हम लोग अगर देखें तो उस मल्टीप्लायर को हम 2.1, 2.2, 2.3 तक लेके आ चुके हैं. इसको हम लोग आगे 1.9 पे करेंटली स्टैंड कर रहा था लास्ट जो हम लोग ने रिपोर्ट किया था. अभी 2.1 के आसपास चल रहा होगा. तो दिस विल गो टू 2.5 और 2.5 पे जाके हमारा जो सेंटर होता है वो 15% प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास आ जाता है. इसके साथ साथ हमें जो हमारी सबसे बड़ी ऑफलाइन की कॉस्ट होती है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो ऑफलाइन का द मेजर कॉस्ट ऑफ एनी एजुकेशन बिजनेस इज टीचर्स. तो हमारे जो ऑफलाइन के अंदर टीचर्स होते थे, तो अर्लियर द ट्रेंड वाज कि इंडस्ट्री से ही लोग टीचर्स हायर करते रहते थे और लगातार उन टीचर्स की सैलरी बढ़ती जाती थी. अप्रेजल देने होते थे आपको, हायर करते वक्त आपको एक पॉप देना होता था. तो हमने वो ट्रेंड बंद किया. हमने अपने आरपू के हिसाब से अपने टीचर डिजाइन किए. तो वी डिजाइन अ यूनिक प्रोग्राम कॉल्ड फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ हम भारत भर से सारे टीचर्स को सोशल मीडिया के थ्रू बुलाते हैं. वो हमारे सेंटर्स पे आते हैं. For a single form floated for a vacancy of 300 people, we get 30,000, 40,000 odd people applying. वो हमारे सेंटर्स पे आते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनको हम डाउट टीचर्स बनाते हैं, फिर उनको हम कंटेंट टीचर्स बनाते हैं और 6-7 महीने के अंदर उनको फिर हम पढ़ाने के लिए उतार देते हैं. दीज टीचर्स एंटर एट अ वेरी लो सैलरी कंपेयर टू द इंडस्ट्री सैलरी, क्योंकि ये यंग होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं. और ये टीचर्स को हम फैकल्टी ट्रेनिंग FTP बोलते हैं, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम से आए हुए टीचर्स.
ये वो टीचर्स हैं जिनकी सैलरी 10 लाख से कम होती है। तो एसटीटी का जो मिक्स है ओवरऑल फैकल्टी के अंदर, अर्लियर यूज्ड टू बी 10%, अगले साल इसको हमने इंक्रीज करके 18% के आसपास किया, अभी 27% के आसपास है। तो दिस विल गो टू नेक्स्ट ईयर 35%। तो इस एसटीपी मिक्स से भी ओवरऑल हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस यंग टीचर, फ्रेशर टीचर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, तो उनको बहुत प्राइमरी हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, जो कि फ्रेशर टीचर, यंग टीचर्स उनको ज्यादा बेटर समझते हैं। सर वन फाइनल क्वेश्चन, ऑनलाइन में आपके पास क्लियर विनर है, आपके पास पेडागोगी सेट है एंड यू आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, बट ऑफलाइन में यू सेड कि टेक एनेबल्ड क्लासरूम्स हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट? वहां पर क्या विनर है आपके पास कि बच्चे अभी आ रहे हैं आपके पास? यस सर, वेरी राइटली प्लेस कि ऑनलाइन के अंदर जो हमारा मोड है वो सबसे बड़ा हमारा कंटेंट होता है, टीचर्स होता है, प्राइसिंग होता है, टेक्नोलॉजी होता है। तो ऑफलाइन के अंदर आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज द ब्रांड, जो मुझे फील होता है द ब्रांड वी हैव। सो राइट नाउ इफ यू सी लॉट ऑफ पेरेंट्स नो अदर ब्रांड बिकॉज हम बहुत नए हैं। तो यहाँ से अगर अगले में आगे आने 3 साल देखूँ तो पेरेंट्स कोई और एजुकेशन ब्रांड जान ही नहीं रहे होंगे पीडब्ल्यू के सिवा, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग, वी आर रीचिंग टू एवरी हाउस होल्ड। आज एक 7th क्लास का बच्चा मेरा ऑनलाइन कोर्स पहले ही खरीद लेता है, तो दे डोंट नो XYZ अदर ब्रांड। तो जब वो क्लास 9 से पहुंचता है, 10 से पहुंचता है या ग्रेड 11 से पहुंचता है, तो द फर्स्ट एजुकेशन ब्रांड दैट दे नो इज फिजिक्स वाला। तो सबसे पहले तो मेरे पास फनल सबसे स्ट्रांग है जो किसी के पास नहीं है। ग्रेड 6, 7, 8 में वी डोंट डू सेगमेंट रिपोर्टिंग, बट व्हाट आई रिमेंबर वी टीच क्लोज टू 1.5 लाख पेड स्टूडेंट्स ग्रेड 6, 7, 8 के अंदर, जहाँ पे कोई और ब्रांड प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मुझे फनल का एडवांटेज मिलता है कि बच्चा सबसे पहले मेरे पास आता है। सेकेंड, अगर मैं देखूं कि क्या मैं डिफरेंट कर रहा हूं बाकी से, तो मुझे लगता है कंटेंट स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू दिस स्मार्ट बोर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी मैं कर पाता हूं। जैसे आप किसी भी और ऑफलाइन को देखोगे तो दे कैन नॉट डू स्टैंडर्डाइजेशन इन ईच ऑफ देयर क्लासरूम्स, क्योंकि द मैनेजमेंट टीम और द सेंट्रल टीम हैज नो कंट्रोल ओवर व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम। मैं यहाँ बैठ के अभी मुंबई के अंदर मेरा टीचर इस टाइम सुबह की क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, क्या टॉपिक पढ़ा रहा होगा, क्या क्वेश्चन करा रहा होगा, मैं वो डिसाइड कर सकता हूँ, मैं वो चेक कर सकता हूँ। तो हमारी जो पीपीटीज होती हैं वो सभी स्मार्ट बोर्ड से सेम फ्लो होती हैं हर एक कोहर्ट के लिए, हर एक क्लासेस के लिए, और टीचर उसको पढ़ाता है। इसके बाद क्या है कि हमारा टीचर जो बच्चों को एक क्लासरूम में लेक्चर देके आता है, उसके बाद हर एक बच्चे को हर क्लास के बाद उसकी रेटिंग करनी होती है विच इज ऑनलाइन। तो मेरे पास बहुत क्लियर विजिबिलिटी है कि मेरे कितने टीचर्स हैं जो 4.5 की रेटिंग के नीचे हैं, कितने टीचर्स हैं जो 4 की रेटिंग के नीचे हैं, जिनको मुझे रिप्लेस करना है, इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ हमारा टीचर क्लास के बाद जो होमवर्क देता है ना, तो अगर आप जब ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपके बच्चे को जब होमवर्क मिलता है तो बच्चा घर आके होमवर्क सॉल्व करता है, नेक्स्ट डे क्लास में बैठ जाता है। तो टीचर को पता ही नहीं चलता किस बच्चे ने होमवर्क सॉल्व किया, किसने नहीं किया, क्योंकि क्लासरूम के अंदर 60 से 70 बच्चे होते हैं। हमारे क्या है कि उस बच्चे को होमवर्क को डिजिटली भी अटेम्प्ट करना होता है। तो उस क्लासरूम में जाने वाले वो 4 टीचर्स 6 टीचर्स को उस क्लासरूम का डैशबोर्ड पूरा दिखता रहता है कि मेरे बच्चों ने होमवर्क में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने छोड़ दिए। तो उसको बहुत क्लियर आइडिया होता है कोहर्ट का कि आज क्लास में मेरे कैसे परफॉर्म किया, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आगे की क्लास को प्रोसीड करता है। इसके अलावा एक एक बच्चे का भी जो डेटा एनालिसिस हम करके बैठते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन किए, होमवर्क के अंदर कितने सही किए, कितना टाइम लिया, टेस्ट के अंदर से कौन से टॉपिक वीक है, कौन से स्ट्रांग है, तो इन सबका डिजिटल फुटप्रिंट जो मेरे पास होता है वो अदर ऑफलाइन के पास नहीं होता है। अगर ऑफलाइन के अंदर बच्चा एक बार अगर ऑफलाइन सेंटर से घर चला गया तो उसके बाद डाउट नहीं पूछ सकता। हमारे यहाँ बच्चा जब घर पहुंच जाता है उसके बाद भी अगले 7 घंटे 8 घंटे वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होकर लगातार डाउट पूछता रहता है। आई थिंक द स्ट्रॉन्ग ब्रांड फनल गिव्स अस द स्टूडेंट इन द वेरी बिगिनिंग, बट आफ्टर दैट जो हमारे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है ओवर द कंटेंट एंड द क्वालिटी, दैट कीप्स द एंगेजमेंट। Okay, makes sense. Thank you, sir, and best of luck for the next quarter. Thank you. Ladies and gentlemen, we take that as the last question and conclude the question and answer session. I now hand the conference over to the management for their closing comments. Thank you so much, everybody, for joining the first Physics Wala investor and analyst call. We look forward to seeing you on the next call. Thank you so much. Thank you. On behalf of Physics Wala Limited, that concludes this conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to ConCall India for latest upcoming con calls.